Hello students. Today's topic in chemical bonding chapter is valence bond theory of covalent bonds. Means how the covalent bonds are formed, and their discussion is based upon a theory which is referred to as valence bond theory. This theory was put forward by Hitler and London in 1927 and was further developed by Pauling and others. So this theory has basically two parts. There are two types of considerations for the formation of covalent bond. The first one is in terms of energy consideration, and the second one is in terms of orbital overlap concept. So in today's lecture, our concentration is just for the formation of covalent bond in terms of energy consideration. Okay, so let me start now. Formation of covalent bond in terms of energy consideration. So before starting this, I would like to give you some important points. The first point is, if there is a repulsion between two atoms, the energy of the atoms is increased and they become unstable. Means a repulsions increases the energy and decreases the stability. Means in a system where there is more magnitude of repulsions, energy will be increased and stability will be decreased. So repulsions increases the energy whereas they decrease the stability. तो obviously इसका जो opposite point होगा that will be attractions decrease the energy and increase the stability. Okay, so these are very important points. एग्जाम्पल मैं आपको इसकी अगर कोट करूँ, मान लो देर आर टू पीपल्स ए और बी, दोनों एक दूसरे को बहुत नफरत करते हैं, हेट करते हैं. सो ऑब्वियसली जब वो एक दूसरे के सामने आएंगे क्या करेंगे, उन दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगी, दे विल फील रिपल्शंस और वो दोनों अनस्टेबल हो जाएंगे. बट मान लो दो फ्रेंड्स हैं, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी. जब अट्रैक्शन होगी तो उनकी एनर्जी कम होगी एंड दे विल फील स्टेबलाइज्ड. सो रिमेंबर दिस थिंग, रिपल्शंस always causes instability, okay, and attractions leads to stability. So this is very important. So in terms of energy consideration, the formation of covalent bond can be explained by taking the example of a molecule like H2. This is the simplest molecule and is considered as the best example for the formation of covalent bond in terms of energy consideration. Now when two atoms come close to each other, when two atoms comes close to each other, new attractive as well as a repulsive forces originate. जब दो एटम एक दूसरे के पास पहुंचेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसमें अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी जनरेट होती हैं. ठीक है, और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दे विल कॉज द स्टेबिलिटी, और जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं दे विल destabilize the molecule. Means stability means
lower energy, and destabilization means higher energy. So now we will discuss what new types of attractive and repulsive forces are generated when two hydrogen atoms come close to each other. So consider this is one of the hydrogen atom, this is second hydrogen atom, and each atom has a nucleus in its center which is positively charged, so this is positively charged nucleus, this is positively charged nucleus, and each atom consists of one electron, and what is the charge on electron? The electron is negatively charged, so this is that one electron, so I have pasted the two electrons, and these are two hydrogen atoms. This is one hydrogen atom, this is another hydrogen atom, and in this case nucleus is positively charged and electron is negatively charged. So when these two atoms will come closer to each other, their nuclei will repel each other because they have same charge, so there will be repulsions, Similarly, these two electrons, electron of one hydrogen atom and electron of second hydrogen atom, they will also repel each other. Okay, so ये जो दो नई फोर्सेस बनी, ये कौन सी फोर्सेस हैं? दीज आर रिपल्सिव फोर्सेस. तो रिपल्सिव है तो इनको मैं बाहर की तरफ कोई एरो लगा देता हूँ. दे आर रिपेलिंग ईच अदर, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस दूसरे एटम के पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक एटम का और दूसरे एटम का. कन्फिगरेशन यू नो, इट इज़ 1s1, इट इज़ आल्सो 1s1. सो ये तो थी रिपल्सिव फोर्सेस. नाउ द केस इज फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस. नाउ व्हाट आर द, अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है और जो ये इलेक्ट्रॉन है एक ही एटम का, इनके बीच में एक फोर्स ये पहले ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. आपको पता है ये हाइड्रोजन, ये जो न्यूक्लियस है दैट होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स टाइटली, ठीक है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता नहीं है. तो ये तो प्री एग्जिस्टिंग है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे. हम करेंगे नई कौन सी फोर्सेज आई जो दो एटम जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करेंगे. सो नेक्स्ट नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट द अट्रैक्टिव फोर्सेज. नाउ अट्रैक्टिव फोर्सेज कौन सी होंगी? सी हियर, एक का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस दूसरे एटम के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. ओके, इसी तरह से एक का दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. सो दीज आर टू न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस. अगर अट्रैक्टिव है तो आई विल प्लॉट देयर एरोस टुवर्ड ईच अदर. सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन, so in case of H2 molecule there are क्या two new attractive forces, and two new repulsive forces. ओके, बट ये जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं ये कब एक्ट करेंगी? व्हेन द एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तब इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो इस केस को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, सो दैट कैन बी शोन एज, सी हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ हियर. ऑन वन ऑफ द एक्सिस वी विल राइट the internuclear distance. On this case we will write internuclear distance. Now what is internuclear distance? It is the distance between the centers of two nuclei. means एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरे हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस के सेंटर का कितना डिस्टेंस है, दैट इज कितनी दूर है एक दूसरे से, दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. और इस तरफ को हम प्लॉट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ को इंक्रीज करेगी. लेट दिस इज द पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी.
जहाँ पर ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है, मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी है वो जीरो है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नो रिपल्शन मीन्स एनर्जी जीरो। ओके, बट अगर रिपल्शंस बढ़ेंगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये देखो पॉजिटिव होगी, और अगर रिपल्शंस कम होंगी, अट्रैक्शंस बढ़ेंगी, तो एनर्जी कम हो जाएगी। सो वी हैव नेगेटिव ऑन दिस साइड। सो दिस नेगेटिव पार्ट जो है, अगर इस तरफ को एनर्जी कम हो रही है तो ये क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शंस। ओके, और जो अपर पार्ट है जहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव है, दैट पार्ट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग रिपल्शंस। नाउ कंसीडर initially consider these two atoms are too far apart, एक दूसरे से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, तो उस केस में इनके बीच ना कोई अट्रैक्शन होगी ना कोई रिपल्शन होगी, तो एनर्जी जीरो होगी। सो इस तरह से आएगा। बट जैसे जैसे एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे, व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। बट जब ये बहुत क्लोज एक दूसरे के आ जाएंगे, देन दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। जब ये बहुत क्लोज आ जाएंगे तो अट्रैक्शन से एनर्जी कम हुई और रिपल्शन से एनर्जी बढ़ गई। तो ये रिपल्शंस कब जनरेट हुई, व्हेन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वाज लो। हम रिवर्स में चल रहे हैं, हम किस तरफ से किस तरफ मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम हायर टू लोअर। हायर डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था तो एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो थी। ठीक है, जैसे जैसे एटम एक दूसरे के पास आते चले गए, एक के न्यूक्लियस ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, एक के न्यूक्लियस ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो अट्रैक्शन से एनर्जी कम होगी। सो दिस इज द पार्ट विच इज रिप्रेजेंटिंग लोअर एनर्जी। बट एक लिमिट तक, उसके बाद अगर हम और एटम्स को क्लोज लेके आएंगे तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करना शुरू कर देगा और एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देगा, तो उससे क्या होगा, एनर्जी फिर बढ़ जाएगी। ओके, सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। और ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे मिनिमम एनर्जी है, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग मिनिमम एनर्जी। और मिनिमम एनर्जी का क्या मतलब है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इस स्टेज में मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जब इतना डिस्टेंस उसका होगा न्यूक्लियाई का। एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम जीरो टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यही बेसिकली वो डिस्टेंस है जो दो एटम्स के बीच एग्जिस्ट करता है एक मॉलिक्यूल में। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। सो दिस वाज द एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन एटम, जिसमें हमने बताया कि जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी जनरेशन ऑफ टू न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड जनरेशन ऑफ टू न्यू रिपल्सिव फोर्सेज। और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनेगी वो आपके सामने आपको दिखाई है यहाँ पे। सो बॉन्ड लेंथ क्या है, यह है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, इट इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अगर डिफाइन करना हो इसको, बॉन्ड लेंथ इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the centers of nuclei of two bonded atoms when energy is minimum, energy is minimum energy है यहाँ पे देखो, नेगेटिव वाली एनर्जी है। सो दिस वाज द केस फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। Now we will consider next example and that is for helium molecule. But helium तो मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं है। So see here helium molecule हम एक कंसीडर कर लेंगे एक हाइपोथेटिकल हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं हीलियम का, कि चलो He2 बनेगा। अब हीलियम का कन्फिग्रेशन यू नो वेरी वेल, इट इज 1s2 एंड बस इसके आगे नहीं है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम इज 1s2. So it has 2 electrons in its first shell. Now I am going to show you 2 helium nuclei. So एक हीलियम न्यूक्लिया मैंने ये बना दिया और दूसरा हीलियम न्यूक्लिया मैंने ये बना दिया। ओके, इनके बीच में लगा देना है एक न्यूक्लियस। और आपको पहले भी बताया व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज
पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस एक हीलियम का, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस दूसरे हीलियम का। नाउ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव? 2 इलेक्ट्रॉन्स in each helium atom. So these are 2 electrons in each helium atom, and these are the forces which are pre-existing. ये forces already हैं, ये नई नहीं बनी हैं, ये ऑलरेडी एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है। हम चेक करेंगे नई फोर्सेज कितनी बन रही हैं अट्रैक्शंस की और रिपल्शन की। तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ना पहले हम अट्रैक्शंस की बात कर देते हैं। तो अट्रैक्शंस में क्या होगा, एक का न्यूक्लियस दूसरे के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो एक ये आ गई अट्रैक्शन की, दिस न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से दिस इज सेकंड वन। तो इस तरह से सेकंड न्यूक्लियस के ये और इधर ये। सो दीज आर दी 4 न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, 4 new forces of attraction are generated, are formed when 2 helium nuclei are coming closer to each other. so ये हीलियम के 2 न्यूक्लियस थे, एक दूसरे के पास है, तो 4 नई अट्रैक्टिव फोर्सेज बन रही हैं। सो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, मैं इनके एरोस एक दूसरे की तरफ को लगा देता हूँ कि अट्रैक्शंस को ये शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं रिपल्सिव फोर्सेज की। So again I will plot 2 helium nuclei. This is first one, this is second one, and in the center nuclei. So this is the first nuclei, this is the second nuclei, and then we have electrons, 2 electrons in each. This is first electron, second, first and second. These are the attractive forces which are pre-existing. Nucleus is positively charged, electrons are negatively charged, negative, negative, negative. Now we will discuss what are the various types of repulsive forces. So ये देखो न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, एक रिपल्सिव फोर्सेज। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, दूसरी रिपल्सिव फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तीसरी रिपल्सिव फोर्स। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, फोर्थ रिपल्सिव फोर्स। This electron will repel this electron, this is the 5th repulsive force. So how many new repulsive forces are generated? There are now 5 repulsive forces, 5. So attractive forces थी 4, repulsive forces कितनी हैं? repulsive forces हैं 5 new repulsive forces. It means in helium 2 the magnitude of repulsive forces is greater than those of attractive forces. मीन्स रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और अट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड कम है। इसका सीधा मतलब है कि ये एटम्स अगर क्लोज आएंगे एक दूसरे के, सो दे विल ऑलवेज इंक्रीज द एनर्जी डिक्रीज नहीं कर पाएंगे, दे विल ऑलवेज इंक्रीज द एनर्जी। और क्योंकि एनर्जी जब इंक्रीज ही होगी तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्शंस बढ़ेंगी और वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम कर देंगे। दैट्स वाई He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। सो उसके बारे में लिखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल let me show the energy profile diagram for helium. So now this is energy profile diagram for He2 क्या है? It is simply hypothetical. This is hypothetical molecule. Okay, hypothetical molecule है ये। यहाँ पे भी क्या है?
जैसे हाइड्रोजन में पढ़ा, इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इस तरफ है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब जैसे ऊपर हमने स्टडी किया रिपल्शंस बढ़ रही हैं, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे रिपल्शंस बढ़ती जाएंगी, रिपल्शन बढ़ती जाएंगी तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। और कोई भी ऐसा पॉइंट हमारे पास नहीं आएगा जिस पॉइंट पे हम ये कह सकें कि यहाँ मिनिमम एनर्जी है। सो एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग इन केस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। सो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इस तरफ को बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये कम हो रहा है एनर्जी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। इन अदर वर्ड्स He2 molecule is unstable and does not exist, is unstable and does not exist, whereas जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है it is stabilized at this point. So H2 molecule is stable and hence exist. Okay, so these are the two important conclusions कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्यों बनता है और हीलियम का मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता है। ये हमने किस बेस पे डिटेल्स को एक्सप्लेन किया है? वी हैव एक्सप्लेन्ड दीज फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसका भी फर्स्ट पार्ट हमने स्टडी किया, दैट वाज इन टर्म्स ऑफ ओनली एनर्जी कंसिडरेशन, ओनली एनर्जी कंसिडरेशन। दिस सेक्शन वी हैव स्टडीड टुडे। दूसरा जो सेक्शन है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए थे वो क्या थे कि रिपल्शंस इंक्रीजेज एनर्जी एंड लोअर्स स्टेबिलिटी, अट्रैक्शंस decreases energy and increases the stability. So these are the important points. So I hope you have gained something from this lecture.